Dear friends, again welcome to video lecture series on surveying and geomatics. Today we will go for unit number 6, Geographical Information System, lesson number 3, that is about GIS capabilities. In previous lecture, we have seen that what are the principles and objectives of GIS. Then also we have seen that what are the three important views in the GIS and how the real world is represented in the GIS system. So we represent the tree, tower, hospitals, schools in the form of point in the GIS software. Similarly, we represent the road, river, pipeline, cable network and other such networks in the line diagram in the GIS software. Similarly, agriculture land, lake, district and wherever the close polylines areas are there, that we represent in the form of area, and some of them are representing the surface such as terrain or population, rainfall density, etc. Similarly, we can also have a connected railway, roadway networks, that also we represent in the GIS software. Now with this, we have already seen that there are some advantages and disadvantages of this GIS system, and with the use of this revolution in the information technology, computer technology, then remote sensing, global positioning system, then communication technology, and with all these, now today we are using the GIS for various purpose. Now with this we will see that how these layers are utilized in the GIS. So we have to understand the capabilities of the GIS. So first of all, what are the things that can be done with the geographical information system? They are mostly, here we can see, the first is map location. So you can show the various types of maps for various locations in the GIS software for different entities. यानी हम लोग अलग अलग लोकेशन के मैप बना सकते हैं GIS सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके. Similarly, we can create the quantity map or map quantities where we can represent the various quantities in the form of some pie graphs and some numbers, and like way we can also create a GIS map showing the quantities of various parameter for the particular selected geographical area. Then another is map densities. Such as you can see that in this map it is showing the map of various densities. So country wise population density was given and the color codings were given depending upon the density. So though we know only the population of that particular part or district or city, but that we can understand how the population density is scattered in over the throughout the country. So this type of population density map or other type of densities, like this is one of the important parameter that we can show in the map using the GIS software. Then find what inside in any particular geographical area in or any particular location, what is exactly the situation or what parameters are important or what is going on. So in terms of various scientific terms and technologies, some parameter or factors we can view inside any particular area. So that type of capability we use. So we can see that what are the various locations for a particular parameter and accordingly where they exist. So that diagram or that map you can view in the GIS software. Or also similarly you can see that here you can see that the various dots of various diameters are shown. So they can represent the quantity of particular parameter and how the size is varying inside the whole any particular area. So that also you can show. Then similarly also what is nearby, that also you can search with the help of GIS system. So at particular location, if you only select any parameter, so related to that parameter what condition exists or
is that parameter is available in any particular location. So for whole country or a state or a particular location area, we can understand the situation. So अलग अलग किसी स्पेसिफिक लोकेशन को हमको ढूंढना है. फॉर एग्जाम्पल, I want the location where the temperature is more than 53 degree. So I can just prepare a map with the help of GIS software where only the cities will be indicated with the particular dots showing the location having the temperature greater than 53 degree. So like way location map, or you can also even show the quantities in a particular map also. सो फॉर एक किसी एक एरिया के लिए यदि मैंने चाहा कि भाई मुझे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसका पॉपुलेशन का बाइफर्केशन चाहिए कि कितने मेल फीमेल है, लर्न कितने, एजुकेटेड कितने, नॉन एजुकेटेड कितने, फार्मर कितने, ऐसा कोई क्वांटिटीज़ का बाइफर्केशन भी चाहिए मुझे, तो मैं मैप के साथ में उस बाइफर्केशन को भी साथ में समझ सकता हूँ. सो क्वांटिटी मैप आई कैन प्रिपेयर. इसी प्रकार से हम लोग डेंसिटी मैप, यानी जैसा एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो डार्क कलर है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है, और जो फेंट कलर है वो बता रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है. सो डिपेंडिंग अपॉन द वेरिंग डेंसिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स वॉट एवर यू विश टू सी इन ए मैप, सो दैट टाइप ऑफ क्यूरी और दैट टाइप ऑफ मॉडल you can build in the GIS software and you can understand the situation. Similarly, what inside at any particular area, so that also you can search based on a database. So जो हमारे पास में statistical database और उसके साथ में उसका special database भी रहता है, दोनों को भी हम लोग सर्च करके अलग अलग फिल्टर अप्लाई करके database के अंदर उसका रिप्रेजेंटेशन हम मैप में देख सकते हैं. और इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किस प्रकार की कंडीशन अवेलेबल है. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द GIS स्टडी. एंड अनदर इज व्हाट्स नियर बाय, so that you can search that if any facility you require and that facility is available at what location. So you can make the combination of the you can search that such type of malls, public malls, where the nearby ATM is also there. So this type of combination you can make, and you can search throughout your country that what type of this type of situation is available and what are the different malls where there is a nearby ATM station. So that type of what's inside or what is nearby, that also you can search with the help of GIS map. And similarly, the most important is you can observe the map changes. GIS स्टडी से हम लोग कैसे चेंज हो रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलरली जैसा हम लोग यदि बात करेंगे तो डिफॉरेस्टेशन कैसे हो रहा है. तो डिफॉरेस्टेशन से हम लोग सेम डाटा जो एक आधे किसी फॉरेस्ट एरिया का है उसको अगले साल के साथ में कंपेयर करके हम लोग दो अलग अलग मैप बना सकते हैं. जो मैप एक पिछले साल के डाटाबेस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा यहाँ पर करेगा, और वो दोनों मैप को देख के हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस किस एरिया में डिफॉरेस्टेशन किस स्पीड से हुआ, नहीं हुआ, या कैसे हुआ, कौन से जगह पे हुआ, कौन से जगह पे नहीं हुआ. तो दोनों मैप को हम लोग मैप भी कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं. सो इस प्रकार से ऐसे कई सारे पैरामीटर्स है जिसका कंपैरिजन भी हम लोग कर सकते हैं मैप के जरिए. सो व्हाट चेंज इन द मैप, या इसी प्रकार से किसी कोस्टल एरिया का हमने एक मैप ले लिया और कोई डिजास्टर के बाद में यदि उसका शेप चेंज हो जाता है तो बाद में क्या उसका कोस्टल एरिया का शेप कैसा है, तो ये भी हम लोग ओवर द ईयर वी कैन कंपेयर दिस, बिकॉज द डाटाबेस अवेलेबल इन द GIS सिस्टम इज गेटिंग कंटिन्यूसली अपडेटेड. रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करके कंटिन्यूसली हमारे सैटेलाइट्स अलग अलग एरिया का डाटा जो है वो अक्वायर कर रहे हैं, एंड दैट डाटा इज गेटिंग अपडेटेड. सो वी आर क्रिएटिंग ए वन लार्ज डाटा विच इज स्प्रेड ऑल ओवर द various locations, and that is called as geo database. So with the GIS हम लोग अलग अलग प्रकार के मैप जनरेट कर सकते हैं, and then we can understand the situation, parameter or area or quantities or densities, and we can understand or we can use that information for the decision making or planning. So that is the one use.
Now, if you want to ask any question, so what are the steps for answering the questions with the GIS? Suppose I decided कि मुझे GIS का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर मुझे फाइंड करना है, तो उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होंगे यहाँ पे. सो फर्स्ट स्टेप इज फ्रेम द क्वेश्चन. फर्स्ट आई हैव टू डिसाइड व्हाट इज द प्रॉब्लम, और आई कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. मुझे क्या जानना है ये मैं पहले यहाँ पर समझ के लूँगा, और जब मुझे वो पता चलेगा देन आई कैन prepare some other work. So first step is to prepare the question or to formulate the problem, what exactly you need. Then second is the select your data. Now depending upon whatever the priority was there, what is the problem was there, we can manage or respond to that problem or that event, and accordingly we can select the data from the database. तो कौन से डाटा को हमको इस क्वेश्चन का आंसर के लिए यूज करना है वो हमको डाटाबेस में से सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो सेकंड स्टेप इज सिलेक्ट योर डाटा विच इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और एनी अदर डाटा ऑल्सो विच इज यू फील दैट विच इज रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. देन थर्ड स्टेप इज चूज एन एनालिसिस मेथड. फिर हम लोग किस प्रकार का एनालिसिस का मेथड हम लोग वहाँ पे करना चाहते हैं. सो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट you want to make a comparison, or you want to find out the trend analysis, or if you want to apply some filters, or you want some area calculation, or you want some quantification, or you want only geographical locations. So what exactly method you are using to process that data, that method also you have to select in our GIS software. Once that method was selected, then the data, by using that method we will process that data. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाना बोले तो हमारी क्यूरी हमने तैयार कर ली. उस क्यूरी के लिए जो डाटा लगता है वो डाटा हमने डाटाबेस में सिलेक्ट कर लिया. देन उसके लिए उस डाटाबेस का एनालिसिस किस अलग अलग मेथड से, या मैथमेटिकल फार्मूले से, स्टैटिस्टिकल फार्मूले से, या क्या अपने को कंडीशन अप्लाई करना है उसको देखते हुए हमने वो मेथड भी सिलेक्ट कर ली. एंड देन वी विल प्रोसेस दैट डाटा बाय यूजिंग दैट मेथड. और फिर उस डाटाबेस पे से जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट फिर हमको देखने के लिए उसको आउटपुट के तौर पे हमको प्रिपेयर करना है. सो इस प्रकार से हमने हमारा जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया, उसके लिए जो डाटा लगता है उसको सिलेक्ट किया, उसको मैनेज किया, और उस पे से प्रोसेस करके हमने प्रायोरिटी सेट कर दी कि हमको ये डाटाबेस से क्या एनालिसिस करना है, क्या हमको आंसर्स फाइंड करना है. और फिर यदि उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसको भी चेंज को भी हमने समझ लिया, और उसके हिसाब से फिर हमने यहाँ पर फोरकास्टिंग भी परफॉर्म कर सकते, जो आने वाला सिचुएशन है वो कैसी बन सकती है. सो दैट ऑल्सो यू कैन मेक, एंड यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑल्सो. सो यू कैन मेक फोरकास्टिंग, यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड, और यू कैन मॉनिटर द चेंज विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ क्यूरी. सो GIS सिस्टम के अंदर हमारा अलग अलग मैप का डाटा, अलग अलग प्रकार के मैप और सभी प्रकार का रियल वर्ल्ड का जो डाटा है जो हमने वहाँ पर रिप्रेजेंट करके रखा है ऑलरेडी. सो वी कैन रिप्रेजेंट दैट रियल वर्ल्ड बाय यूजिंग द सम पॉइंट, लाइन और एरिया और शेप. एंड द एवरी लाइन और एवरी पॉइंट और एवरी एरिया इज अटैच विद द सम डाटाबेस और वेरियस एट्रीब्यूट्स. So the each representation in the GIS is having a related data, and then based on that data we understand the situation. We use that capability of computing by various methods, and then a new graph or a new result or a new plot, a graph plotted, or any 3D model or any representation in the form of pictorial format, or any 3D map और 2D मैप, दैट ऑल्सो वी कैन जनरेट विद द हेल्प ऑफ GIS. तो यहाँ पे GIS में हमको जो भी क्वेश्चन चाहिए उसका आंसर हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो यूज द GIS फॉर द रूट एनालिसिस. सो ऑप्टिमाइज रूट यदि पता करना है तो सपोज फॉर एग्जाम्पल इन पर्टिकुलर सिटी हमारे अलग अलग जगह से, अलग अलग नगरों से, अलग अलग कॉलोनियों से जो वेस्ट होता है हमारे कॉलोनी में का, वो वेस्ट हमारे ट्रक के अंदर भर के वो कंटेनर में हम लोग डालते हैं, और वो कंटेनर को उठा के ट्रक में लगा के वो जो ट्रक है जो हमारा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होता है या फिर वेस्ट डंपिंग साइट होती है वहाँ पे ले जाता है. तो शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा किसी पर्टिकुलर लोकेशन के
सॉलिड वेस्ट का कंटेनर को ट्रांसफर करने के लिए, ये पता करने के लिए हम लोग एक सिटी का मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हमारी ऑप्टिमाइज रूट का यदि फंक्शन हमने यूज़ किया, मेथड यूज़ की, तो अलग अलग जो एरिया का जो वेस्ट है वो किस शॉर्टेस्ट रूट से कम खर्चे में हम लोग हमारे वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के पास में ले जा सकते हैं, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रूट, दिस प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ GIS. So in this way, various problem we can formulate and we can search the method or we can apply some query for that in the GIS software and we can generate the result in the form of map. तो यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें मैप के परिप्रेक्ष्य में होती है, because it is a geo database. GIS is used for geographical information system, not only information, but it is a geographical information system. So इस प्रकार से किसी भी सिचुएशन को मैप के जरिए हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे तो किस किस क्वेश्चन के आंसर GIS हमें दे सकता है, तो सबसे पहला तो आंसर हमें मिल सकता है लोकेशन के बारे में, कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या है। जैसा कि मैं ये बात कर सकता हूँ कि ऐसे PHC सेंटर मुझे पता चाहिए इंडिया में कि जहाँ पे मलेरिया के केसेस जो है वो पिछले महीने में सबसे कम थे। सो व्हाट एग्जिस्ट एट पर्टिकुलर लोकेशन, तो या फिर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे PHC सेंटर को मैं पता कर सकता हूँ। सो इन दैट वे वी कैन सर्च फॉर द पर्टिकुलर लोकेशन, या मैं एक ऐसा लोकेशन पता कर सकता हूँ जहाँ पे पिछले 72 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। तो यहाँ पे मुझे पूरे इंडिया के अलग अलग सिटी के रेनफॉल का डाटा लगेगा। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इज अवेलेबल एंड दैट इज डाटा इज कैप्चर्ड बाय द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स एंड दैट इज विद द ऑल facilities available, and that data is now available in some server at various locations, but they are connected to GIS system, and then with the help of that we can process and we can understand the location or what exists at a particular location. That answer you can get. Similarly, for particular condition also we can search. So identify the location where certain condition exist. So that way also you can find out any location. So you can find out that at particular location कैसे कौन से जगह है कि जहाँ पे आज दोपहर का 12 बजे का टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर था। सो पर्टिकुलर कंडीशन हमने यहाँ पर बता दी, और उस कंडीशन के हिसाब से फिर ऐसे कौन से शहर है कि जहाँ पे ये टेम्परेचर ऊपर गया था, ये हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो डिफरेंट कंडीशंस आल्सो यू कैन आइडेंटिफाई with the help of GIS. Then the most important is you can find the trends. So what has changed since, that is the important thing that you can understand. तो हम लोग किसी पर्टिकुलर एक डाटाबेस के अंदर जो पिछले हिस्टोरिकल डाटा जो हमारे पास में है, पिछले साल का जो डाटा है, उसको समझते हुए उसका एक ट्रेंड भी बना सकते हैं, और वो ट्रेंड के हिसाब से आगे क्या सिचुएशन आएगी या आगे कैसा रहेगा ये भी हम लोग पता कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे शुगर केन का प्रोडक्शन हमारा पिछला कैसे कैसे रहा, और फिर उसके हिसाब से अलग अलग क्रॉप्स और अलग अलग खेतों में अलग अलग कंट्री के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार से लोगों ने गन्ने का प्रोडक्शन लिया, और इसको देखते हुए आने वाले और 5 सालों में भी हमारे यहाँ पे गन्ने का प्रोडक्शन कितना रह सकता है, इस प्रकार का ट्रेंड हम लोग पता कर सकते हैं। So you can have many types of parameters you can use along with this. So the most important is again you can understand the trend, what has changed since. Then we can also understand the pattern, what is the special pattern exist. तो हम लोग ये भी समझ सकते हैं, जैसा कि हमको कई बार हमारे अर्थक्वेक के डाटा में हमको पता चलता है कि कोई स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर ही बार बार हर साल अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो इसका मतलब वहाँ पर हमारा ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स के जो भी जॉइंट्स है हमारे, वो वहाँ पर हो सकते हैं, बाउंड्रीज हो सकती है हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स की जो बाउंड्रीज है। तो ऐसी कौन सी बाउंड्रीज है कि जहाँ पे हर साल अर्थक्वेक आ रहे हो, हालांकि छोटे बड़े हो सकते हो। तो ऐसे बाउंड्रीज, तो उसका लोकेशन या उसका पैटर्न हमको यदि जानना है तो ये भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे देश में किस प्रकार के किसी चीज़ के लिए पैटर्न कैसे बन रहा है, जैसा हमने अभी कोरोना लॉकडाउन में देखा कि कोरोना के पेशेंट्स
कैसे बढ़ रहे हैं किस किस इलाके में, तो उसके हिसाब से कौन से ऐसे देश में इलाके हैं कि जहाँ पे हमें सबसे पहले वैक्सीनेशन का ड्राइव लगाना चाहिए। तो इसको समझने के लिए मुझे ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, जो पूरे वैक्सीनेशन का डाटा है थ्रू आउट द इंडिया, उसका इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा और उसके हिसाब से मैं वहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है मेरा, उसको समझ सकता हूँ और उस पर से मेरा कुछ आगे का जो डिसीजन है वो मेरा डिपेंड हो सकता है। सो दैट ऑल्सो यू कैन डू, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑल्सो यू कैन हैव ए मॉडल टू अंडरस्टैंड द आउटपुट। रिजल्ट्स देखने के लिए हम लोग मॉडल बना सकते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग किसी प्रेडिक्शन को भी कर सकते हैं कि यदि आने वाले दिनों में यदि मॉइस्चर कंटेंट यदि बढ़ गया तो हमारे एग्रीकल्चर के क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे कम होगा, या कितना कम होगा या नहीं होगा, या इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। सो व्हाट इफ एनालिसिस ऑल्सो यू कैन डू बेस्ड ऑन द डाटा। तो जो डाटा हमारे पास में है उसके अंदर यदि वो डाटा में ऐसे कुछ चेंजेस आ रहे हैं और वो आगे का डाटा भी हम लोग फोरकास्ट करके उसके अंदर भी इफ कंडीशन लगा सकते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इफ एनालिसिस, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, यानी वो कंडीशन एग्जिस्ट होने के पहले ही उस कंडीशन को हम लोग पहले ही समझ सकते हैं कि आगे की सिचुएशन क्या आ सकती है। तो ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जहाँ पर पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर में या एनवायरमेंटल सेक्टर में हर जगह पे हम लोग ऐसे इफ़ लगा सकते हैं। और हम लोग यदि किसी प्रोजेक्ट को मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो अभी हमारा समृद्धि महामार्ग का प्रोजेक्ट चालू है, तो अभी नागपुर से लेके मुंबई तक का हम लोग समृद्धि महामार्ग से जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल में अभी अलग अलग लोकेशन से जो नागपुर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ से लोग मुंबई जाने के लिए अलग अलग रास्ते से यूज़ कर रहे हैं। तो उनकी संख्या है, उनका डाटाबेस यदि हमको पता है तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि यदि समृद्धि महामार्ग पूरी तरह से चालू हो जाता है तो फिर आगे कैसे वहाँ की फ्रीक्वेंसी, ट्रांसपोर्टेशन की फ्रीक्वेंसी जो रहेगी, डेंसिटी कैसी रहेगी, ये सारा चीज़ हम लोग प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। सो यू कैन हैव व्हाट इफ एनालिसिस ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन यूर situation or condition. So you have to see that in the GIS we can search for any particular location, we can search for any particular condition, we can search for any particular trend, we can search for any particular pattern in a map, and we can also prepare a what if analysis model. यानी किसी सिचुएशन को पहले ही हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं व्हाट इफ एनालिसिस का इस्तेमाल करके, और उसके लिए 3D मॉडल हम लोग बना सकते हैं। यदि यानी जैसा हमने बात की अभी कि ओमिक्रॉन का जो भी नया संकट आ रहा है, तो इस प्रकार से यदि हम लोग लॉकडाउन नहीं करते हैं और यदि ओमिक्रॉन के पेशेंट एक सोर्स से आ रहे हैं तो वो कैसे कैसे फैलेंगे, तो उसके लिए कैसे प्रेडिक्शन हो सकता है, वो इस प्रकार के कुछ एनालिसिस भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये भी GIS का हमारा यूज़ हम लोग कर सकते हैं, पर्टिकुलरली टू फाइंड लोकेशन, कंडीशन, ट्रेंड, पैटर्न एंड मॉडलिंग। Now another is this, all these things we are doing with the help of geo database. ये सारा हम लोग क्यों कर पाते हैं? Because we are having a geo database associated with the various locations in the map. तो हमारे जो रिमोट सेंसिंग द्वारा जो अलग अलग मैप्स बनाए गए हैं उस मैप में हमने GIS का इस्तेमाल करके अलग अलग एट्रीब्यूट्स का डाटा, अलग अलग पैरामीटर का डाटा, अलग अलग फैक्टर्स की इंफॉर्मेशन हमने एसोसिएट कर दी है अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ में, या अलग अलग एरिया के साथ में, अलग अलग रूट्स के साथ में, या अलग अलग लोकेशन के साथ में। सो वी कैन एसोसिएट ए डाटाबेस विद द पॉइंट, डाटाबेस विद द लाइन, डाटाबेस विद द एरिया, डाटाबेस विद द सरफेस, और डाटाबेस विद द सम पैरामीटर। तो ऐसे सारा डाटाबेस हमारा जियो डाटाबेस में रहता है, और देयरफॉर द जियो डाटाबेस इज द इम्पॉर्टेंट डाटाबेस विच ऑफर्स द वेरियस कैपेबिलिटीज विद द GIS। तो GIS में सारा कुछ जो हो रहा है वो हमारा वो हो रहा है हमारा, बिकॉज वी आर हैविंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ जियो डाटाबेस इन आवर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ विद दिस इट इज ए जियो डाटाबेस स्टोर्स ए रिच कलेक्शन ऑफ द स्पेशल डाटा इन ए सेंट्रलाइज लोकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो हमारा डाटाबेस है, ये डाटाबेस हमारा सिस्टमैटिक तरीके से स्पेशल लोकेशन के साथ में, यानी स्पेशल इंफॉर्मेशन, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, यानी उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, इस प्रकार के भौगोलिक इंफॉर्मेशन के साथ में वो सारा डाटाबेस हमारा सेंट्रल लोकेशन पे हम लोग
जियो डाटाबेस के जरिए मेंटेन कर सकते हैं। यदि हमने जीआईएस की सिस्टम हमारे कंट्री में हमारी बना ली तो वहाँ पे हम लोग सेंट्रलाइज तरीके से भी हम लोग ये डाटा को स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जियो डाटाबेस। देन वी कैन अप्लाई द सोफिस्टिकेटेड रूल्स एंड द रिलेशनशिप टू दिस डाटा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीआईएस में कई सारी कैपेबिलिटीज है। सो हम लोग अलग अलग प्रकार के मैथमेटिकल मॉडलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इवन अलग अलग प्रकार के स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, और कोई साइंटिफिक रूल्स का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में सारे चीज़ों के लिए कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अलग अलग प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, और वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम लोग सोफिस्टिकेटेड रूल भी बना सकते हैं, या अलग अलग पैरामीटर के बीच में या अलग अलग एरिया के बीच में अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप भी बना के हम लोग एनालिसिस करने के लिए जा सकते हैं। सो दैट इज द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द जियो डाटाबेस। जियो डाटाबेस कैन डिफाइन द एडवांस जियोस्पेशियल रिलेशनल मॉडल, फॉर एग्जाम्पल टोपोलॉजीज और द नेटवर्क। तो हम लोग ये जो जैसा कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसके अंदर हमारे जो पानी का हेड अपना अलग अलग जगह पे रहेगा, और किस प्रकार से हमारा जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कैसे काम करेगा, उसका परफॉर्मेंस, उसके लिए हम लोग यहाँ पर 3D नेटवर्क या 3D रिलेशनल मॉडल हम लोग बना सकते हैं, और उसके लिए हम लोग जीआईएस का इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ पे हमारा जो है एडवांस जियो स्पेशल डाटा जो है उसके साथ में हम लोग वो रिलेशनल मॉडल को खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि जो हेड है वो अलग अलग पाइपलाइन में से अलग अलग जगह पे अलग अलग ऊंचाई की वजह से बदलते जाएगा। तो जियोग्राफिकल लोकेशन को समझते हुए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कैसे काम करेगा, इसके लिए हमारा मॉडलिंग करना है तो हम लोग जियो डाटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से जियो डाटाबेस मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ द स्पेशल डाटा विद द कंसिस्टेंट एक्यूरेट डाटाबेस, क्योंकि यहाँ पे हर इंफॉर्मेशन किसी ना किसी जियोग्राफिकल लोकेशन के साथ रिलेटेड है, तो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन यदि आई तो बराबर एक ही जगह पे किसी लोकेशन के साथ में ही वो मैप होगी, यानी वो ऐसा नहीं हो जाएगा कि अमरावती की इंफॉर्मेशन नागपुर के लिए ऑटोमेटिक अपने आप से नोट हो जाएगी करके, क्योंकि अमरावती का जियोग्राफिकल लोकेशन अलग है, नागपुर का अलग है। सो दैट वे यू कैन मेंटेन द इंटीग्रिटी इन द स्पेशल डाटा। स्पेशल डाटा ये यूनिक होता है, हर जगह का लोकेशन यूनिक होता है, और उसके हिसाब से ये स्पेशल डाटा जो है उसकी इंटीग्रिटी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं जियो डाटाबेस का इस्तेमाल करके, और उसके वजह से एक्यूरेट डाटाबेस वी कैन मेंटेन। सिमिलरली वी कैन वर्क विद इन ए मल्टी यूजर एक्सेस एंड एडिटिंग एनवायरनमेंट। तो जियो डाटाबेस हमें एक फैसिलिटी देता है कि एट ए टाइम हम लोग अलग अलग लोग एक ही डाटा के ऊपर काम कर सकते हैं, यानी मैं मेरे सर्वर पे बैठ के एक आधा डाटा एनालिसिस कर सकता, और कोई ऐसे कई सारे अलग अलग लोग अपने अपने लोकेशन पे जियो डाटाबेस का इस्तेमाल करके जीआईएस कैपेबिलिटीज यूज करके अलग अलग मॉडलिंग, अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग स्टडीज, रिसर्च या कैलकुलेशंस या फॉर्मुलेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऐसे काम पैरेलल में कर सकते। सो दैट इज अगेन वन इंपॉर्टेंट एडवांटेज वी आर गेटिंग ऑफ यूजिंग द जियो डाटाबेस। देन इट इंटीग्रेट्स द स्पेशल डाटा विद द अदर आईटी डाटाबेस। ये और एक फीचर है डाटाबेस का, मैंने जैसा बताया डाटाबेस जो है ये जियो डाटाबेस जो है ये स्पेशल डाटा और अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डाटाबेस यानी नॉन स्पेशल डाटा, सो इट हैव ए रिलेशनशिप विद द स्पेशल डाटा एंड नॉन स्पेशल डाटा। तो ये दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर पक्का रिलेशन बना के जियो डाटाबेस मेंटेन होता है। सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज दैट द स्पेशल डाटा एंड नॉन स्पेशल डाटा बोथ आर गेटिंग एसोसिएटेड विद ईच अदर इन द जियो डाटाबेस। देन इट इज इजीली स्केल योर स्टोरेज सॉल्यूशन। जियो डाटाबेस के लिए हम लोग हमारी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, बिकॉज GIS इज ए ह्यूज सिस्टम, इट इज नॉट एट ओनली वन प्लेस, सो यू कैन एक्सटेंड इट्स कैपेबिलिटी एंड यू कैन इन्वॉल्व सम अदर more number of servers to save the geo database. So that is the having more capability of recording the data. So you can scale up your storage capacity for the database. Then it supports the custom features and the behavior. जियो डाटाबेस जो है ये कस्टमाइज करके हम लोग अलग अलग स्पेशल फीचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सिमिलरली इट लिवरेजेस यू फॉर द स्पेशल डाटा टू इट्स फुल पोटेंशियल, यानी जो जियोग्राफिकल डाटा है, स्पेशल डाटा है जो है, यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जितना भी डाटा है उसका हम लोग
कई अच्छी तरीके से अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यूजिंग जियो डाटाबेस. सो जियो डाटाबेस इज बिहाइंड द एनी मैप और जियो डाटाबेस इज बिहाइंड द आवर जीआईएस सिस्टम. और जीआईएस सिस्टम में ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारा है जियो डाटाबेस. अब ये जियो डाटाबेस यदि आपके पास में है तो इसको हम लोग यदि कंप्यूटर के सिस्टम से हम लोग यहाँ पर समझेंगे तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जियो डाटाबेस जो स्ट्रक्चर है इसका, ये स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है. जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारा मसाई मारा का एक डाटा है समझ लो, तो ये हमारा मेन डाटाबेस हो गया. फिर इसके अंदर मैंने काउंट का एक अलग डाटाबेस बना लिया जिसके अंदर मैंने 2002 का डाटा जो है, 2002 का बफर का डाटा, देन 2002 के ऑल टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स, देन वेट एरिया ऑफ 2000, देन वेट एरिया ऑफ 2000 फॉर सेकंड साइकिल 2001. इस प्रकार से अलग अलग डाटा को मैं यहाँ पर मेंटेन कर सकता हूँ एक मेन डाटाबेस के फाइल के अंदर. इसी प्रकार से यहाँ पे और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन वहाँ पे यदि अटैच करना है तो ये यहाँ पे हो गया ये काउंट, यानी यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी वाला डाटा आ गया. क्वालिटेटिव डाटा भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं कि जैसा कि रिवर्स के बारे में जानकारी या फिर रोड नेटवर्क के बारे में जानकारी या फिर मार्बल्स के बारे में जानकारी. ये इस प्रकार से ऐसे अलग अलग जो भी फीचर आपको लगते हैं तो आप डाटाबेस में फीचर वाइज डाटा हम लोग डाटा सेट बना सकते हैं या फिर फीचर वाइज आप लोग क्लासेस भी बना सकते हैं. तो ये कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम लोग डाटाबेस को मेंटेन करने में वहाँ पे फीचर डाटाबेस और क्लास वाइज डाटाबेस ये अलग अलग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं. और इसका इस्तेमाल करते हुए हमारे जीआईएस के सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पर काम करते. तो यहाँ पे सारा जो काम है हमारा जो फ्रंट एंड में हमें कंप्यूटर के ऊपर दिखाई देता है जीआईएस सॉफ्टवेयर में, पर्टिकुलरली हम लोग यदि ArcGIS एक सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर है QGIS, तो यहाँ पे हम लोग लेयर्स में काम करते हैं. जैसा कि AutoCAD में हम लोग अलग अलग ड्राइंग्स के पार्ट्स के लिए अलग अलग लेयर बनाते हैं, यानी जैसा कि हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान अलग लेयर पे, सेकंड फ्लोर प्लान अलग लेयर पे, थर्ड फ्लोर प्लान अलग लेवल पे, लेकिन उसके कॉलम हमारे कॉमन रहेंगे. इस प्रकार से यहाँ पर भी जीआईएस डाटा में अलग अलग लेयर हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर किसी भी काम के लिए सबसे पहले हम लोग एक बेस मैप का इस्तेमाल करते हैं. इस बेस मैप को हम लोग एक पहले रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जीआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर, और फिर उसके बाद में फिर अलग अलग एंटिटीज़ के लिए अलग अलग लेयर का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि ये मैप के ऊपर यदि मुझे अलग अलग इमेज मैप करना है तो मैं इमेज के लिए अलग लेयर यूज़ करूँगा. तो यहाँ पे जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है उसके इमेजेस मैं यहाँ पर माउंट कर सकता. या फिर जो मेरा लैंड कवर है तो लैंड कवर के लिए मेरी यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड कौन सी है, ओपन लैंड कौन सी है, स्लोपिंग ग्राउंड कौन सा है, प्लेन ग्राउंड कौन सा है, या उसका कैसा फैलाव है, तो लैंड कवर किस प्रकार से मेरा है उसके लिए मैं एक लेयर का इस्तेमाल कर सकता हूँ मेरे ये मैप के ऊपर. देन इसी प्रकार से यहाँ पे जो डेमोग्राफिक लोकेशन है मेरा उसके लिए भी मैं यहाँ पर एक अलग से लेयर बना सकता हूँ. तो डेमोग्राफिक लोकेशन पे मुझे हाइट के हिसाब से भी अलग अलग पता चलेगा मुझे कि कौन सा एरिया कहाँ पर है. फिर मैं चाहे तो वहाँ पर यदि वेटलैंड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे डाल सकता हूँ एडिशनल, कि किस किस एरिया में वेटलैंड सिचुएटेड है या नहीं है करके. इसी प्रकार से फिर टोपोग्राफी जो है तो यहाँ पे मैं काउंटर मैप्स के जरिए अलग अलग लोकेशन की एलिवेशंस भी यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ. तो एक लेयर पे मुझे सारे काउंटर मैप्स के RLs यदि रखूँगा मैं तो एक मेरी अलग से लेयर मुझे मिलेगी जहाँ पे मुझे काउंटर मैप दिखेगा. देन उसके ऊपर मैं जोनिंग भी कर सकता हूँ कि यदि जो मेरी लैंड है ये लैंड में यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसका बाइफर्केशन कर दिया है कि ये MIDC के लिए रिजर्व लैंड है, ये रेजिडेंशियल जोन है, ये हमारा एग्रीकल्चर जोन है, ये हमारा फॉरेस्ट जोन है. तो इस प्रकार से जो जोनिंग होता है तो उसी मैप के अंदर आप अलग अलग जोन भी इंडिकेट कर सकते हैं. तो उसके लिए भी मैं एक अलग लेयर का इस्तेमाल कर सकता हूँ. और इसी प्रकार से उसके अंदर भी हमारे जो प्लॉट्स है हमारे मेरा प्लॉट अलग, बाजू वाले का प्लॉट अलग, ऐसे अलग अलग कॉलोनीज है, कॉलोनी मिलके वार्ड है. तो इस प्रकार का जो प्लॉट के टुकड़े हैं हमारे ज़मीन के टुकड़े उसकी बाउंड्रीज दिखाने वाला एक एरिया, तो इसके लिए भी मैं एक लेयर इस्तेमाल कर सकता हूँ. तो इस प्रकार से जिस प्रकार की जानकारी आपके पास में अवेलेबल है उस प्रकार की अलग अलग लेयर के ऊपर अलग अलग मैप आप यहाँ पर GIS के अंदर डाल सकते हो. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट इन द GIS database we can create the various layers.
So many different types of data can be integrated into the GIS and represented in a map layer. तो बेस मैप के साथ में अलग अलग मैप को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं एक ही लोकेशन के लिए, इसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। और इस प्रकार से फिर वहाँ पे हमें जब यहाँ पे जैसा कि हमारा लैंड कवरेज का एरिया, फिर डेमोग्राफिक डेंसिटीज़ के बारे में एरिया, हमारे वेटलैंड का एरिया, टोपोग्राफी के RLs की वैल्यूज़, यहाँ पे जोनिंग कौन से पॉइंट्स कौन से जोन में आ रहे हैं, फिर हमारे प्लॉट्स की बाउंड्री या उसके नंबर्स कौन से हैं। तो हर इन्फॉर्मेशन ये बेस मैप में की जो है ये अलग अलग लेयर्स के साथ में अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर मैं इन लेयर को समझते हुए इन लेयर का डाटा जो एसोसिएटेड इनके साथ में, हर एक लेयर के साथ में एक पर्टिकुलर टाइप का डाटा एसोसिएट हो जाएगा और फिर इसका सारा अलग अलग कॉम्बिनेशन करते हुए मैं यहाँ पे सारे मेरी जो क्यूरीज है डाटाबेस के अंदर मैं फायर कर सकता हूँ। अलग अलग क्वेश्चंस के लिए मैं डाटाबेस को प्रोसेसिंग यहाँ पर कर सकता हूँ। सो यहाँ पर हम लोग जैसा कि स्ट्रीट है, यहाँ पे प्लॉट की बाउंड्रीज है, जोनिंग है, फ्लड जोन है, क्लाइंट का लोकेशन, कंपटीशन, शॉपिंग सेंटर, ऑफिसेस, पार्क और अदर डेमोग्राफिक लोकेशंस, all that you can show in the various map with the various database and all they are arranged in a particular manner. So ये सारे जो यहाँ हैं, यहाँ पे एक के ऊपर एक हमने कई सारी ऐसी लेयर्स के मैप हमने तैयार कर दिए और ये कैपेबिलिटी हमारे GIS सॉफ्टवेयर में हमको मिलती है। अब इसके वजह से दिस अलाउज अस टू गेन द इनसाइट्स अबाउट द रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोकेशन। तो अब मैं यहाँ पर ये लेयर के डाटाबेस को देखते हुए मैं ऐसा एरिया पता कर सकता हूँ कि जहाँ पे वेटलैंड नहीं होनी चाहिए और उसका पर्टिकुलर टोपोग्राफी वहाँ पे कितने RL की होनी चाहिए वो मैं पता कर सकता हूँ और फिर वो कौन से जोन में आएगा और वहाँ पे क्या एक्चुअल में अवेलेबल है ये मैं सारा देख सकता हूँ। तो ये अलग अलग लेयर्स के जो डाटाबेस है इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, इसके साथ में मैं अलग अलग प्रकार के क्यूरीज फायर कर सकता हूँ, फिल्टर लगा सकता हूँ, कंडीशन लगा सकता हूँ और फिर इस डाटाबेस में से छान के मुझे जो मिलेगा उसका एक मुझे नया आउटपुट का एक मैप मिलेगा। वो मैप हो सकता है इसमें से सभी लेयर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग डाटाबेस के लेयर्स का इस्तेमाल GIS सॉफ्टवेयर में यहाँ पे कर सकते हैं। तो जब भी हमें इनपुट करना होता है तो हमें सबसे पहले तो एक बेस मैप लेना पड़ता है और फिर बेस मैप के अंदर यानी ऐसा यदि किसी सिटी का मैप मुझे बनाना है GIS के अंदर तो मुझे सिटी के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग डाटाबेस के साथ में इनपुट करनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ पर मैं जैसा कि मेरा जो इमेज है यानी वो उस एरिया का जो मैप है वो मुझे पहले इनपुट करना पड़ेगा एज ए बेस मैप। फिर उसके ऊपर के जो एलिवेशंस है वो दिखाने के लिए मैं उसकी वैल्यूज़ अलग अलग सभी लोकेशंस की वैल्यूज़ एलिवेशन की वैल्यूज़ वहाँ पे मैं दे दूंगा यानी RL दे दूंगा। फिर उसके अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन के जो नेटवर्क है मैंने रास्ता जो है मेरे कैसे रास्ते कनेक्टेड है उस एरिया में वो रास्ते का मैंने एक लेयर बना लिया। फिर उसके जो एड्रेसेस है यानी प्लॉट नंबर और उसकी बाउंड्रीज वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर वो बाउंड्री का जोनिंग कैसा है वो भी मैं यहाँ पर मार्क कर सकता हूँ अलग अलग, इसमें कौन सा ग्रीन एरिया है, कौन सा येलो एरिया है, कौन सा वाटर फॉरेस्ट जोन है। यहाँ पर फिर यहाँ के कुछ ही वाटर के फीचर्स यदि है तो रिवर है, पॉन्ड है, लेक है या फिर इस प्रकार के जो फीचर्स है वो भी मैं मार्क कर सकता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर सर्वे के कंट्रोल स्टेशन यदि मेरे है, समझ लो सर्वे स्टेशन है मेरे यहाँ पे, तो वो कौन से लोकेशन पे वो भी मैं मार्क कर सकता हूँ। और इस प्रकार से जो भी अवेलेबल डाटा है उस डाटा को हम लोग GIS में इनपुट कर सकते हैं अलग अलग लेयर के साथ में। तो इसको मैं यदि एक साथ में देखता हूँ तो मुझे ऐसा इमेज मॉडल दिखेगा GIS के अंदर जो रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हालांकि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस लेयर्स and each layer is associated with particular database and in that we can understand the reality of the any situation in the GIS model। अब यहाँ पे जो डाटा सोर्सेस है इसको हम लोग यहाँ पर बाइफरेट कर सकते हैं जो हमारे डाटाबेस में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा जैसे स्ट्रीट का डाटाबेस है तो उसका डाटा मुझे ऐसा एक मैप तैयार हो जाएगा जो मेरी एक डाटा लेयर है। मेरे पास में जो बिल्डिंग का डाटा है तो बिल्डिंग के जो लोकेशन है, अब हर एक लोकेशन के लिए बिल्डिंग के लिए मेरा स्पेशल डाटाबेस अटैच है। यानी ये बिल्डिंग का लोकेशन कहाँ पर है, उसका एरिया कितना है, उसका चारों भी बिल्डिंग के कॉर्नर्स कहाँ पर है वो मुझे पता है यहाँ पे डाटाबेस के जरिए। तो ये बिल्डिंग का डाटा मेरे पास में है। इसी प्रकार से फिर वेजिटेशन का डाटा कि कौन से लोकेशन पे ग्रीनरी है और वो कैसी है, कहाँ पर बुशेस है, कहाँ पे ग्रासलैंड है, कहाँ पे ट्रीज है, कहाँ पे फॉरेस्ट है। तो ये भी मैप के जरिए ही मैं स्पेशल लोकेशन के साथ में यानी
जियोग्राफिकल लोकेशन के साथ में वेजिटेशन का डाटा ये मेरे पास में है, जियोग्राफिकल लोकेशन के साथ में बिल्डिंग के डाटा मेरे पास में है, जियोग्राफिकल लोकेशन के साथ में मेरे स्ट्रीट का डाटा मेरे पास में है, और फिर ये इनको मैं यदि मैप करता हूँ तो ये डाटा को इंटीग्रेट करने के बाद में मुझे एक प्रकार का ऐसे मैप मिलेगा। अब ये जनरल मैप हो गया हमारा। अब ये मैप के अंदर हम लोग अलग अलग क्यूरी फायर कर सकते और फिर वहां पे ऐसा कुछ सिचुएशन को पता कर सकते, या फिर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या है ये पता कर सकते हैं। यानी आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बता दो तो वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे वाटर बॉडी है कि ग्रास लैंड है कि ट्री है कि बिल्डिंग है कि नहीं है, तो ऐसा भी मैं पता कर सकता हूं। तो इस प्रकार से रियल वर्ल्ड को हम लोग अलग अलग डाटा लेयर्स में रिप्रेजेंट करके उसका एक मॉडल बनाते हैं और फिर उस मॉडल के ऊपर अलग अलग प्रकार की कंडीशन लगा के उस मॉडल को व्यू करते हैं अलग अलग तरीके से। सो हियर दिस डाटा सोर्स एंड द लेयर प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी फॉर प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे जो डाटाबेस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको भी हमको समझना जरूरी है। इसको नाम ही हमने दिया है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो दोनों भी चीजें है, जियोग्राफिकल यानी स्पेशल डाटा, इंफॉर्मेशन यानी नॉन स्पेशल डाटा। तो कोई भी जानकारी वो हो गई नॉन स्पेशल इंफॉर्मेशन, और कोई भी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन वो हो गई हमारी स्पेशल डाटा। सो यहाँ पे हमारे दो प्रकार के डाटा होते हैं, एक होता है हमारा स्पेशल डाटा एंड दूसरा होता है नॉन स्पेशल डाटा। सो जियो डाटाबेस के अंदर दोनों भी डाटा हम लोग साथ में सेव करते हैं। सो फीचर्स, ओरिएंटेशन, शेप एंड साइज ऑफ द स्ट्रक्चर, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एंटिटी का उसका जो लोकेशन है, उसका फीचर क्या है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसकी साइज कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में जो जानकारी है वो हो गया हमारा स्पेशल डाटा यानी भौगोलिक माहिती, इसको हम लोग बोल सकते हैं। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लोकेशन एंड अदर जियोग्राफिकल फीचर्स। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी स्पेशल डाटा से आती है हमारे पास में जियो डाटाबेस में। दूसरा होता है नॉन स्पेशल डाटा, ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज अबाउट द वेरियस एट्रीब्यूट्स लाइक एरिया, लेंथ, पॉपुलेशन, इस प्रकार से। तो और ऐसी अन्य जानकारी अलग अलग जगह की हो सकती है जहां पे हमें सिर्फ क्वांटिटीज देना है, सिर्फ वैल्यूज बताना है। तो इस प्रकार के जहां पर किसी भौगोलिक इंफॉर्मेशन का संबंध नहीं है, ऐसी अन्य जानकारी, लेकिन वो जानकारी भी उसी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स के साथ में रिलेटेड है। जैसा कि यानी पेड़ मैं बोलूंगा तो एक ट्री का जो लोकेशन है वो हो गया स्पेशल डाटा, यानी उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड। लेकिन उस ट्री की जो हाइट है, उस ट्री की विड्थ है, उस ट्री का जो शेप है, ये जो जानकारी है वो हो गई नॉन स्पेशल डाटा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के एलिमेंट के साथ में दोनों जानकारियां होती है कि उसका भौगोलिक स्थान या उसके भौगोलिक फीचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दैट इज स्पेशल डाटा, और जो अन्य डाटा होता है वो सारा आता है नॉन स्पेशल कैटेगरी में। सो इन द जियो डाटाबेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटाज आर देयर। नाउ विथ दिस we can understand that there are various characteristics of the spatial data. Whatever we are calling it as a geographical data or geographical information, it is represented as spatial data. So here the spatial references where, सबसे पहला बोले तो क्या है, स्पेशल डाटाबेस क्या रिप्रेजेंट करता है, कहाँ, यानी भौगोलिक स्थान को हमें बताता है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेशल डाटा, क्योंकि स्पेशल डाटा पता चलते बराबर हमको पता चल जाता है कि वो चीज कहाँ पर है, उसका लोकेशन कहाँ पर है। देन इट इज हैविंग एट्रीब्यूट, यानी वो स्पेशल डाटा किसके साथ में जुड़ा हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट। यानी जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि पंजाब के किस खेतों में गेहूं का क्रॉप बोया है, तो यहाँ पे जो गेहूं है, गेहूं का क्रॉप, तो वो हो गया मेरा एट्रीब्यूट। लेकिन जो पंजाब का लोकेशन है वो आ जाएगा मेरा वेयर, यानी वो आ जाएगा मेरा स्पेशल रेफरेंस। तो इस प्रकार से एट्रीब्यूट भी वहां पे जुड़ा होता है स्पेशल डाटा के साथ में। देन स्पेशल रिलेशनशिप, तो हाउ का मतलब यह है कि ऐसा खेत कि जहां पे गेहूं है, तो ये जो रिलेशन हो गया वो स्पेशल रिलेशनशिप हो गई। तो हर एक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के साथ में कोई ना कोई रिलेशनशिप भी वहां हमको समझना होता है डाटाबेस के लिए। एंड टेम्पोरल कंपोनेंट, टेम्पोरल कंपोनेंट बोलो तो व्हेन, यानी यहां पर आ जा रहा हमारा टाइम स्टैम्प। जो भी हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पे हम लोग उसका जो स्थान है
उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर हम लोग उसके समय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये स्थान और समय के साथ में ये जो भी हमारा एट्रीब्यूट है, यानी जो हमारा फीचर है, जो हमारी एंटिटी है या जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका अन्य उसी के जैसे ऑब्जेक्ट के साथ में क्या रिलेशन है। तो यहां पर हम लोग रिश्ता, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी फीचर का स्थान, उसका अन्य एलिमेंट के साथ में रिश्ता और उसका टाइम स्टैम्प, ये जो सारी जानकारी है ये हमें एक स्पेशल डाटा के साथ में मिलती है। तो इस प्रकार का स्पेशल डाटाबेस हम लोग यहाँ पर GIS सॉफ्टवेयर के अंदर तैयार करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग काम के लिए करते हैं। अब ये सारा जो काम है, मैंने बताया आपको कि GIS के अंदर सारा काम बेस मैप के साथ में होता है, मीन्स द मैप प्लस डाटाबेस। तो यहाँ पे सिर्फ एक मैप होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उस मैप के हर एक ऑब्जेक्ट के साथ में, हर एक पॉइंट साथ में, या हर एक लाइन के साथ में, या हर एक शेप के साथ में डाटाबेस भी अटैच होगा। तो जो मैप है हमारा, तो यहाँ पे हमको अलग अलग बेस मैप का भी इस्तेमाल GIS सिस्टम के अंदर करना होता है। तो जो बेस मैप है उसके लिए हम लोग जो एग्जिस्टिंग मैप है उसको स्कैन करके भी हम लोग हमारे सिस्टम के अंदर इनपुट कर सकते हैं, या फिर जो भी मैप हम लोग जनरेट कर रहे हैं वहाँ पर भी जो मैप हमको मिलेगा, वहाँ पर भी हमको कंप्यूटर की भाषा में हमको सोचना है कि जो हमको सॉफ्ट कॉपी में मैप मिलेगा, तो वहाँ पे उसके दो प्रकार के मॉडल हमको मिलते हैं। सो हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स, स्पेशल डाटा मॉडल्स। अब ये जो स्पेशल डाटा मॉडल्स जो है हमारे, इसमें दो फंडामेंटल अप्रोच है, एक है रास्टर मॉडल और दूसरा है वेक्टर मॉडल। नाउ वी विल सी इनटू डिटेल्स दैट व्हाट इज रास्टर मॉडल एंड व्हाट इज वेक्टर मॉडल। सो हियर द एंटिटी इंफॉर्मेशन इज explicitly recorded for a basic data unit, that is cell, grid और पिक्सेल। यदि किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर सेल के लिए या पर्टिकुलर ग्रिड के लिए या पर्टिकुलर पिक्सेल के लिए हम लोग यदि ध्यान में रखते हैं, तो उस प्रकार की इंफॉर्मेशन को हम लोग बोल रहे हैं कि रास्टर मॉडल के जरिए हमने उस इंफॉर्मेशन को हमने कैप्चर किया या समझा। इसी प्रकार से वेक्टर मॉडल की यदि बात करते हैं, सो यहाँ पे वेक्टर बेस्ड GIS डाटा आर हैंडल्ड एज पॉइंट, लाइन और एरिया। तो जब हम लोग GIS मैप के अंदर किसी सेल, ग्रिड या पिक्सेल के जरिए डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा हो गया रास्टर मॉडल। या किसी GIS मॉडल के अंदर हम लोग पॉइंट, लाइन या एरिया के जरिए किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हो गया हमारा वेक्टर मॉडल। सो हियर द इंफॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद द पॉइंट, so that is having a particular coordinate of x and y, so that is longitude and latitude of that particular location, and उस पॉइंट, वो जो पॉइंट है वो पर्टिकुलर लोकेशन को मार्क करता है। तो ये एक एंटिटी हो गई हमारी वेक्टर मॉडल के अंदर। दूसरी एंटिटी हमारी लाइन, सो इट इज ए सीरीज ऑफ पॉइंट्स, सो इट रिप्रेजेंट्स द पर्टिकुलर लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, सो दैट यू कैन रिप्रेजेंट इन द वेल्प ऑफ लाइन। और तीसरा वेक्टर एलिमेंट है हमारा विच इज शोइंग दैट एरिया, सो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन, सो लाइंस फॉर्मिंग देयर बाउंड्रीज और सीरीज ऑफ द पॉलीगॉन्स, तो ये हो जाएगा एरियाज। तो GIS सॉफ्टवेयर में जब हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, तो हम लोग रास्टर मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कंप्यूटर के डाटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, वहां पे वो सेल, ग्रिड या पिक्सेल का इस्तेमाल करता है। या फिर हम लोग वेक्टर मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वेक्टर मॉडल पॉइंट, लाइन या एरिया को रिप्रेजेंट करते हुए डाटाबेस को सेव करता है। सो इन दैट वे वी आर यूजिंग दिस टू टाइप्स ऑफ मॉडल इन द स्पेशल GIS सॉफ्टवेयर। नाउ हियर इफ यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन स्पेशल डाटा, दो स्पेशल डाटा जो है वो अपने समझा कि वह रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज, या रास्टर मॉडल और वेक्टर मॉडल। नाउ हियर whatever the non-spatial data was there, so here different kinds of data values which are we can use to represent the different phenomenon, that is called as non-spatial data। तो मैंने बताया कि जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन छोड़ के बाकी सारी जो इंफॉर्मेशन है, बाकी सारा जो डाटा है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन स्पेशल डाटा। सो इट इज एसोसिएटेड विद द डिफरेंट फिनोमिनॉन, डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट फैक्टर्स। सो उसके बारे में जो जानकारी जो है
इट मे बी इन क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। सो वो हो जाएगा हमारा नॉन स्पेशल डाटा। अब यहाँ पे दो टाइप है इसके, क्वालिटेटिव डाटा और न्यूमेरिक डाटा। क्वालिटेटिव डाटा जो है, क्वालिटेटिव डाटा में यहाँ पे हम लोग क्या बात कर सकते हैं, तो सबसे पहला है यहाँ पे नॉमिनल और कैटेगोरिकल डाटा जो है वो आ गया क्वालिटेटिव डाटा में, यानी इट डिस्क्राइब्स द डाटा ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज। जैसा कि अलग अलग सॉइल का डाटा, यानी काली मिट्टी, लाल मिट्टी, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में हम लोग उसको बांट सकते हैं, तो वो क्वालिटी डाटा हो गया हमारा। इसी प्रकार से दूसरा है हमारा ऑर्डिनल डाटा, यानी वी डिफरेंशिएट द डाटा बाय रैंकिंग द रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल द सॉइल इरोजन या रोड नेटवर्क। यानी हम लोग यहाँ पर ऑर्डिनल डाटा के जरिए उसको समझ रहे हैं यहाँ पे कि जैसा कि जो भी सॉइल का इरोजन कम होता है या सॉइल का इरोजन ज़्यादा होता है, तो हम लोग यहाँ पर उसके पर्टिकुलर रैंकिंग के हिसाब से उसको हम लोग समझ रहे हैं। सो इन दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड द क्वालिटेटिव डाटा। सिमिलरली जहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है वो हमारा आ जाएगा पूरा न्यूमेरिक डाटा में। तो यहाँ पे हमारा एक तो इंटरवल का डाटा आ सकता है, यानी वहाँ पे कोई स्पेसिफिक इंटरवल के बारे में, टाइम स्टैम्प के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी वैल्यू जैसा कि टेम्परेचर, तो वो हो गया हमारा इंटरवल का वाला न्यूमेरिक डाटा हो गया वो। इसी प्रकार से हम लोग रेशो की भी बात कर सकते हैं। सो देयर आर टू थिंग्स आर देयर, इंटरवल डाटा और रेशो डाटा। अब रेशो डाटा में अलग अलग फैक्टर्स हम लोग, डाटा हैविंग द एब्सोल्यूट वैल्यूज, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी वहाँ का जितना पॉपुलेशन है उस पर से ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रेशो डाटा, यानी किसी दो वैल्यूज को डिवाइड करके हमने जो वैल्यू आई उसको हमने पॉपुलेशन डेंसिटी बोला, तो ये न्यूमेरिक डाटा हो गया। तो नॉन स्पेशल डाटा जो है वो क्वालिटी डाटा हो सकता है, यानी हम लोग उसको कैटेगरी के नाम से लिख सकते हैं। वहाँ पे वैल्यू नहीं लिखेंगे आप वहाँ पे, लेकिन आप कैटेगरी लिखेंगे। और यहाँ पे न्यूमेरिक डाटा में आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखेंगे, यानी टेम्परेचर 53 डिग्री, तो 53 डिग्री न्यूमेरिक डाटा हो गया हमारा। या फिर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल बोलेंगे तो क्वालिटी होगी उसकी, तो यहाँ पे डाटाबेस में हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल ऐसा लिखना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव इंडिकेटेड द कैटेगरी ऑफ दैट सॉइल, सो इट इज शोइंग क्वालिटेटिव डाटा। सो सिमिलरली तो इस प्रकार से हमारा जो अदर इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग एक तो क्वालिटेटिव डाटा के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं, या फिर उसको हम लोग वैल्यूज के टर्म में यानी न्यूमेरिक डाटा के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। न्यूमेरिक में भी कुछ वैल्यूज डायरेक्ट वैल्यू हो सकती है और कुछ वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड करके आई वाली वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए वहाँ पर भी इंटरवल डाटा और रेशो डाटा या डायरेक्ट डाटा और रेशो डाटा, कैलकुलेटेड डाटा, इस प्रकार से डाटा हो सकता है। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो किसी भौगोलिक स्थान के अलावा जानकारी है सारी, वो है हमारा अलग अलग नॉन स्पेशल डाटा, उसको हम लोग बोल रहे हैं। सो हियर इन दिस वे इन द जियो डाटाबेस वी स्टोर द स्पेशल डाटा ऑल्सो एज वेल एज नॉन स्पेशल डाटा ऑल्सो। Now here, suppose if we use the raster model for in the GIS software, so there are some advantages. जैसा इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि जो रास्टर मॉडल होता है वो सेल या पिक्सेल या फिर एलिमेंट को इस्तेमाल करता है किसी भी इमेज को या मॉडल को बनाने के लिए GIS सॉफ्टवेयर में। सो हियर द एडवांटेजेस ऑफ रास्टर आर, इट इज सिंपल डाटा सोर्स। ये हर एक पिक्सल को याद रखता है, सो इट इज़ वेरी सिंपल डाटा। यहाँ पे आपको कोई रिलेशन उसमें का याद ध्यान में रखना नहीं है। देन इट इज चीप टेक्नोलॉजी, देन इट इज एनालिसिस इज सिंपल, इट इज एनालिसिस इज वेरी सिंपल, एंड सम ग्रिड सेल फॉर सेवरल एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो रास्टर डाटा जो है ये हमारा सिंपल डाटा होता है, क्योंकि ये हमारा सेल या पिक्सेल या एलिमेंट से रिलेटेड होता है। तो जैसा हमने हमारा जो इमेज होती है वो इमेज को हम लोग अलग अलग पिक्सेल में बांट सकते हैं, तो हमारे अलग अलग पिक्सेल में हम लोग उसको बांट सकते हैं। तो ये एक सेल है मेरा, इस प्रकार से अलग अलग पिक्सेल का रिलेशन बना के मैं एक इमेज बना सकता हूँ। सो वो हो गई हमारी रास्टर इमेज, बिकॉज इट इज यूजिंग सेल और पिक्सेल और एलिमेंट टू फॉर्म द ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से ये यदि हम लोग रास्टर इमेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी पर्टिकुलर सेल के हिसाब से हम लोग डाटा को ध्यान में रखते हुए हमारा जो पूरा मॉडल है उसको हम लोग फॉर्मुलेट कर रहे हैं जीआईएस के अंदर, सो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी आपके पास में होंगे। जैसा कि लार्ज डाटा वॉल्यूम, यानी हर एक पिक्सल का डाटा आपको ध्यान में रखना है, तो काफ़ी सारा डाटा हो जाएगा आपको जो सेव करना पड़ेगा। तो रास्टर इमेज के लिए काफ़ी सारा डाटा हमें हैंडल करना होता है। देन इट इज़ इनएफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज, क्योंकि अननेसेसरी हम लोग ज़्यादा का डाटा सेव करने के लिए हमारा स्टोरेज कैपेसिटी हमको बढ़ानी पड़ती है।
सो ये हमारा डिसएडवांटेज है रास्टर मॉडल यूज़ करने का। देन इट इज़ डिफिकल्ट नेटवर्क एनालिसिस। यहाँ पे नेटवर्क एनालिसिस करने के लिए हमें हर पिक्सल का रिलेशन अदर पिक्सल के साथ में क्या है ये समझने के लिए काफ़ी सारा प्रोसेसिंग करना होता है, और इसके लिए फिर इसीलिए ये नेटवर्क एनालिसिस के लिए काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है रास्टर मॉडल। सो वी डू नॉट यूज रास्टर मॉडल फॉर नेटवर्क एनालिसिस इन द GIS। देन इट इज़ लेस एक्यूरेट और अट्रैक्टिव मैप्स। जो मैप दिखेंगे ये आपको क्लियर नहीं दिखेंगे। आपने जैसा देखा कि जैसा कम पिक्सल की इमेज यदि होती है और आप उसको बड़ा करते हैं तो वो इमेज फटती है, क्योंकि हर पिक्सल में अलग अलग कलर भर के आपको वो पूरा सारा इमेज आपको दिखाई देती है बराबर। तो इसीलिए ये जो है इसके जो मैप बनेंगे वो अट्रैक्टिव मैप नहीं बनेंगे हमारे रास्टर मॉडल से, और वो थोड़े रेस एक्यूरेट भी हो सकते हैं क्योंकि वो अलग अलग पिक्सल से बने हुए होते हैं या अलग अलग सेल से बने हुए होते हैं, अलग अलग एलिमेंट से बने हुए होते हैं। सो दे आर नॉट मच एक्यूरेट एंड नॉट अट्रैक्टिव मैप्स। सिमिलरली लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी यूजिंग द लार्ज सेल्स। अब यहाँ पे हमने ये पिक्सल जैसा आपने देखा कि यदि हम लोग हाई पिक्सल की इमेज यूज़ करते हैं तो उसको काफ़ी सारा डाटा लगता है, क्योंकि उसकी क्या मेमोरी कैपेसिटी उसकी ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है हमको कंप्यूटर में। तो इसी प्रकार से, और यदि हमने पिक्सल की संख्या कम की तो फिर वहाँ पे डाटा का लॉस हो सकता है, क्योंकि हर एक पिक्सल को हम लोग प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं सिस्टम में। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द raster model. So in the GIS, whatever the base map we are creating or whatever the map work, जो मॉडल बनाने हमको मैप के जरिए, मैप के अंदर हमें अलग अलग रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करना है, वो सारों के लिए हम लोग रास्टर इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो हमने यहाँ पर देखे। अब ये हमारा जो एडवांसमेंट अभी हुई है इसके जरिए हमारी कैपेबिलिटी बढ़ने की वजह से हम लोग आजकल वेक्टर मॉडल का भी इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर मॉडल जो है वो रास्टर मॉडल से थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट होता है। यहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन को एसोसिएट करने के लिए पॉइंट, लाइन या फिर पॉलीगॉन इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके वजह से यहाँ पर हमें कुछ एडवांटेजेस मिल रहे हैं वेक्टर मॉडल इस्तेमाल करने के। तो सबसे पहला एडवांटेज है गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। यानी जैसा कि मुझे एरिया है तो मैं पॉलीगॉन को एसोसिएट कर दूंगा उसको। यदि मेरे पास में लेंथ है तो मैं लाइन को अटैच कर दूंगा, लेकिन यदि मेरे पास में लोकेशन है तो मैं पॉइंट को अटैच कर दूंगा। तो इस प्रकार से मैं सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ डाटा का वेक्टर मॉडल के अंदर। रास्टर मॉडल में मुझे हर एक लेंथ को बताने के लिए अलग अलग पिक्सल को वही लेंथ बार बार मुझे एसोसिएट करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से थोड़ा डिफिकल्टी होती है रास्टर मॉडल में, लेकिन यहाँ पे वो आसान है। और इसके वजह से यहाँ पर एक स्मॉल फाइल साइज यूज करनी पड़ती है। यहाँ पे अलग अलग पिक्सल का इंफॉर्मेशन हमको सेव करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये जो एंटिटीज है इसकी इंफॉर्मेशन सेव करनी है। तो इसके लिए यहाँ पर फाइल साइज जो है वो हमारी स्मॉल हो सकती है। देन एक्यूरेट मैप आउटपुट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए जो आउटपुट हम निकालेंगे तो वो भी आपको पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन के फॉर्मेट में ही मिलेगा, और उसके वजह से हमारे मैप थोड़े से हमको अच्छे दिखाई देंगे। देन हियर देयर आर सम डिसएडवांटेजेस सच एज कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर, क्योंकि हम लोग ये पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, तो हमारा जो डाटाबेस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि उसे पूरे लाइंस की इन्फॉर्मेशन या पॉलीगॉन की इन्फॉर्मेशन यानी सरफेस की इन्फॉर्मेशन वो भी उसके साथ में हमको डाटाबेस को साथ में ध्यान में रखना है। देन इट इज़ एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके लिए हमें पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन सेव करनी होती है वो इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोसेसिंग के टाइम पे थोड़ा कैलकुलेशन को टाइम लगाती है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पिक्सल को हम लोग यहाँ पर प्रोसेस नहीं कर रहे, हमको होल एलिमेंट को एट ए टाइम प्रोसेस करना होता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी होती है हमारी, और यहाँ पर एनालिसिस जो है वो भी थोड़ा सा हमारा टाइम लगाता है। तो रास्टर में थोड़ा एनालिसिस फास्ट होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन वहाँ पे हमको एक्यूरेसी नहीं मिलती, लेकिन वेक्टर मॉडल में हमको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। तो इस प्रकार से रास्टर डाटा और वेक्टर डाटा का इस्तेमाल हम लोग GIS में करते हैं। अब यहाँ पे यदि इमेज के जरिए हम लोग फ़र्क समझेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है ये रास्टर मैप है। रास्टर मैप यानी यहाँ पर अलग अलग ग्रिड का यानी अलग अलग पिक्सल का यानी अलग अलग एक स्क्वायर का मैंने अलग अलग इन्फॉर्मेशन के साथ में मैंने एक यहाँ पर मैप बनाया है। तो यहाँ पे हर स्क्वायर का अलग अलग कलर है,
और उससे मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन बन रही है, उससे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे कहीं तो भी ग्रीनरी है, यहाँ पर मेरी ऐसी रिवर गई है, ये इधर गई है रिवर, ये इधर गई है रिवर, और इस प्रकार से यहाँ पर उसके आजू बाजू में जो पीला एरिया दिख रहा है वो कुछ एरिया अलग है, बाहर का एरिया जो है वो फॉरेस्ट का ऑर्नामेंटल का एरिया जो है वो अलग है। तो ये रास्टर मैप जो है वो इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा हमारा। यहाँ पे रिवर की विड्थ भी हम लोग प्रॉपरली नहीं दिखा पा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उसी मैप को हम वेक्टर मैप में भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पॉलीगॉन बराबर हमारे वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लाइन है ये हमारे रिवर के डायरेक्शन को बराबर कर रही है, और ये जो फॉरेस्ट की बाउंड्री है ये भी हमको पूरी क्लियरली बराबर दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से वेक्टर इमेज हमारी थोड़ी सी दिखने के लिए शार्प और अच्छी होती है, एक्यूरेट होती है। रास्टर इमेज हमारी थोड़ी दिखने के लिए ज़रा रफ होती है, लेकिन यहाँ पे मेमोरी इसको कम लगती है, इसको यहाँ पर मेमोरी ज़्यादा लगती है। इसका प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो होता है, इसका प्रोसेसिंग फास्ट होता है। और इस प्रकार से किसी रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक्चुअल में हमारा 3D मॉडल हमने GIS में यदि बनाया तो ये ऐसा दिखेगा आपको, ये एक्चुअल में है। लेकिन उसको वेक्टर मैप के जरिए देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, और रास्टर मैप के जरिए देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो इस प्रकार से बेस मैप या मॉडलिंग जो है वो हम लोग GIS सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं, और उसका इस्तेमाल करते हुए फिर हमको अलग अलग कंडीशंस को प्रोसेस करना होता है। तो यदि हम लोग यहाँ पर डिफरेंस समझेंगे तो रास्टर इमेज वर्सेस वेक्टर इमेज यदि हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमको यहाँ पे कई सारे फ़र्क यहाँ पर दिखाई देंगे। सबसे पहला है कि यहाँ पे रास्टर इमेज का जो डाटाबेस स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल का डाटा सेव करना है यहाँ पे। सिमिलरली इजी एंड एफिशिएंट ओवरले, यहाँ पे रास्टर इमेज का ओवरलेइंग अब आराम से एक के ऊपर एक कर सकते हैं, क्योंकि हर एक को पिक्सल को ही आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पे ओवरले को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। यहाँ पे हर एक लेयर का वही पिक्सल आप आसानी से समझ सकते हैं यहाँ पर ओवरलेइंग के अंदर, वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है थोड़ी सी। देन इट इज़ कॉम्पेटेबल विद द रिमोट सेंसिंग इमेजनरी, रिमोट सेंसिंग से जो डाटा आ रहा है उसके लिए ये जो रास्टर इमेज है ये ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये कम मेमोरी में कम बैंडविड्थ में हमारे पास में आ सकती है, यानी ट्रांसफरिंग इसका आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर डाटा यदि है सो नॉट कंपेटेबल विद द रिमोट सेंसिंग इमेजनरी। रिमोट सेंसिंग के इमेजनरी में ये डाटा थोड़ा कंपेटेबल नहीं है वेक्टर इमेज का। देन इट हैज इन हाई स्पेशल वेरिएबिलिटी इज एफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड इन द रास्टर मॉडल। हाई स्पेशल वेरिएबिलिटी इज एफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड, क्योंकि हर एक पिक्सल जो है, हर एक पिक्सल का लोकेशन आप बिल्कुल स्पेसिफाई कर सकते बराबर रास्टर इमेज के अंदर। हालांकि यहाँ पे हमको उतना करने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग पॉइंट्स का डाटा रखना पड़ेगा ध्यान में, तब जाके आपको यहाँ पे स्पेशल वेरिएबिलिटी मिलेगी। देन सिंपल फॉर प्रोग्रामिंग बाय द यूजर्स, सम ग्रिड सेल डिफिनेशन ऑफ द फॉर वेरियस एट्रीब्यूट्स, ये डिफाइन करने के लिए आसान है। यहाँ पे अलग अलग सेल को हम लोग अलग अलग एट्रीब्यूट तुरंत दे सकते हैं। यहाँ पे हमको अलग अलग एलिमेंट्स को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सो यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयर डाटा स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल होगा। देन रास्टर इमेज इट इज़ इनएफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर स्टोरेज, क्योंकि इसको अलग अलग पिक्सल वाइज स्टोर करने के हिसाब से हमें जो एक्यूरेसी चाहिए, जो एफिशिएंसी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो ज़्यादा डाटा हो रहा है इन्फॉर्मेशन, लेकिन हमारे पास में इन्फॉर्मेशन कम स्टोरेज हो रही है, मेमोरी ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। तो यहाँ ये एफिशिएंट हो जाती है, वेक्टर इमेज जो है ये एफिशिएंट हो जाती है हमारी इनकोडिंग ऑफ द टोपोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग हम लोग अलग तरह से करते हैं, लाइन, पॉइंट और एरिया को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन इन द रास्टर इमेज एरर्स इन द पेरीमीटर एंड द शेप इट इज़ डिफिकल्ट टू परफॉर्म द नेटवर्क एनालिसिस, इसके पहले भी मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे ये पिक्सल को समझते हुए यदि पेरीमीटर या सर्कुलर शेप है तो वहाँ पे आपको हर एक पिक्सल को यदि कवर करेंगे तो आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेंगी एरिया कैलकुलेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर एरिया आप इजीली करेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लेंथ से, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइन से, तो नेटवर्क एनालिसिस हमारा यहाँ पे आसान हो जाता है वेक्टर इमेज के साथ में, जो रास्टर इमेज में हमें पॉसिबल नहीं है। देन इट इज इनएफिशिएंट प्रोजेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, इनएफिशिएंट प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन इन द रास्टर इमेज। यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे मैप बड़े बड़े बनाते जा रहे हैं और उसको यदि हम लोग एनलार्ज करके देखते हैं तो आपको एक्यूरेसी क्लियरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन वेक्टर इमेज में आपको हाई एक्यूरेसी मिलेगी मैप के साथ में। मैप को आपने कितने भी स्केल में बड़े करके प्रिंट किया तो भी आपको एरिया कैलकुलेशन, आपके जो बाउंड्रीज है वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगी, वो रास्टर इमेज में नहीं हो पाता है।
देन बिकॉज ऑफ दैट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन यूजिंग द लार्ज पिक्सल साइज, ये मैंने आपको बताया कि कई बार फिर बड़े मैप के लिए रास्टर इमेज के मुझे कई सारा डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखने के लिए, मेमोरी के लिए यहाँ पर वेक्टर डायग्राम यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वेक्टर इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। सो नो लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन व्हेन यूजिंग द लार्ज पिक्सल साइज, कितना भी बड़ा आप उसको इमेज को बड़ा कर लो तो इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होती है, इसलिए आपको एक्यूरेसी ही मिलती है मैप में। एंड इट इज़ लेस एक्यूरेट एंड लेस अपीलिंग फॉर द मैप आउटपुट। जैसा मैंने बताया कि इसके जो मैप बनेंगे वो इतने अच्छे दिखेंगे नहीं, थोड़ा रफ दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैप बनेंगे वो काफ़ी एक्यूरेट, उसकी बाउंड्री स्मूथ दिखेंगी। यानी जैसा कि हम लोग पहले जो फोटोग्राफ निकालते थे, सादा फोटोग्राफ और HDMI वाला फोटोग्राफ, तो HDMI वाला फोटोग्राफ जो है वो ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से HDMI वाला फोटोग्राफ बोलो तो वेक्टर इमेज है, और जो पहले वाले हम लोग फोटो निकालते थे बिटमैप वाली इमेज जो है वो है हमारी रास्टर इमेज। तो रास्टर इमेज पर्टिकुलरली .bmp, .png ये उसके और .gif ये उसके एक्सटेंशन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वेक्टर इमेज के अंदर उसका जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे TIFF टिफ एक्सटेंशन हो सकता है, या फिर CDR फाइल हो सकती है, या फिर PSD फाइल हो सकती है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर हमारा वेक्टर इमेज या रास्टर इमेज का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर मैपिंग के लिए कर सकते हैं, और उसके कुछ डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस और फीचर्स भी हमने यहाँ पर देखे। अब इस प्रकार से यदि हम लोग GIS का इस्तेमाल करते हैं तो प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए हम लोग GIS का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए। देन बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं GIS का। विजुअल एनालिसिस आपको जहाँ पर भी करना है, आपको समझना है स्थिति को, तो वहाँ पे आप 3D मॉडल या 2D मॉडल या फिर मैप के जरिए आप लोग किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। जो काउंट को पढ़ के या कोई डाटाबेस को या टेबल को पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा कि ये डाटा क्या है, लेकिन उस डाटा को आपने मैप में कन्वर्ट करके लोकेशन के साथ में उसको देखा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सिचुएशन क्या है। तो दैट इज़ अगेन यूजफुल। इट इम्प्रूव्स द ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन, कई सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रेशन करके हम लोग यहाँ पे GIS की इंफॉर्मेशन को शेयरिंग आसानी से कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग टास्क मोर एफिशिएंटली कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे GIS यूज़ करते हैं हम लोग हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए, तो हमारे काम जो है आसानी से हो जाएंगे। जो मैनुअल मेथड से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वहाँ पे हमको काफ़ी सारा स्ट्रेस और काफ़ी सारा वेस्टेज ऑफ टाइम होगा जो GIS से नहीं होगा। यहाँ पे न्यू टास्क नॉट प्रीवियसली पॉसिबल, वो भी हम लोग आज GIS में कर सकते हैं। जैसा कि वेदर फोरकास्टिंग पुराने ज़माने में काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आज हम लोग ज़्यादा एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। कई जगह पे हम लोग ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। तो कई सारे पैरामीटर्स है ऐसे कि जिसको हम लोग जियोग्राफिकल लोकेशन में समझते हुए कंडीशन को समझ सकते हैं, या ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सारा पॉसिबल हो रहा है हमारा GIS डाटाबेस की वजह से। यहाँ पे हम लोग कई सारे ऐसे सीनेरियो भी मॉडल कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया व्हाट इफ एनालिसिस हो सकता है। यदि समुंदर के अंदर पानी की लेवल यदि बढ़ गई तो कौन से डॉक्स जो है वहाँ पे जो पानी है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, वो भी हम लोग ऐसा कुछ सिचुएशन को समझना है तो ऐसे मैप को बना के हम लोग समझ सकते हैं। सो वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोविजन के लिए हम लोग GIS का इस्तेमाल काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसके पहले भी हमने देखा कि इसके कई एडवांटेजेस हमको है यहाँ पे, लेकिन साथ में GIS के कुछ कंस्ट्रेंट्स भी है। जैसे बेनिफिट्स है वैसे कंस्ट्रेंट भी है। क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है यहाँ पे, तो GIS थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। सो कॉस्ट ज़्यादा है, लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग। GIS के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर GIS का इस्तेमाल करते आना चाहिए। जैसा कि ArcGIS ये सॉफ्टवेयर है, QGIS ये सॉफ्टवेयर है GIS को यूज़ करने के लिए, लेकिन उसका ट्रेनिंग आपको होना जरूरी है। अब ArcGIS सॉफ्टवेयर को यदि इस्तेमाल करना है तो आपको DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी आना चाहिए, आपको AutoCAD भी आना चाहिए, आपको एक्सेल भी आना चाहिए, आपको ग्राफिक्स भी बनाते आना चाहिए, आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट जैसे भी स्मॉल यूटिलिटी टूल्स भी आने चाहिए, तब जाके आप ArcGIS को सीख सकते हो। सो यू नीड टू हैव, इसी प्रकार से आपको वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज के साथ में भी आपको काम करते आना चाहिए। सो मल्टीपल कैपेबिलिटीज आर रिक्वायर, सो देयरफॉर एडुकेट ट्रेनिंग हमको यहाँ पर चाहिए। देन GIS इज नॉट ए टूल डेसिग्नेटेड टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द डाटा, ये ध्यान में रखना है अपने को। यहाँ पर डाटा की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए GIS का इस्तेमाल नहीं होता है, स्थिति को समझने के लिए हम लोग GIS का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन और मिस इंटरप्रिटेशन कभी कभी हो सकता है यदि
आपने डाटा को गलत चूज किया तो, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंस्ट्रेंट समटाइम्स। देन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर स्पेशल डाटा यदि है तो आप किसी पर्टिकुलर एरिया का लोकेशन का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो स्पेशल डाटा आपके पास में अवेलेबल होना कंपलसरी है जीआईएस सिस्टम के अंदर। एंड लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द गवर्नमेंट बॉडीज इज नॉट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट। कई सारे ऐसे गवर्नमेंट के ऑफिसेज है कि जहाँ पे जीआईएस के द्वारा कई सारे चीज़ों को समझा जा सकता है, डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जीआईएस की फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जीआईएस से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो लोग उस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जैसा कि अमरावती महानगर पालिका में हम लोग प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने के लिए जीआईएस का मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी सर्विस फैसिलिटीज़ है, यानी रोड नेटवर्क, सीवर नेटवर्क, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क, इलेक्ट्रिक केबल नेटवर्क, ये सारा जो है इसका प्लानिंग, इसका एक्सपेंशन, इसका एग्जिस्टिंग सिचुएशन समझने के लिए हम लोग यदि जीआईएस मैप हमारे पास अवेलेबल है अमरावती सिटी का, तो हमारे काफ़ी डिसीजन मेकिंग में हमको मदद मिलेगी। लेकिन ये सारा अभी गवर्नमेंट लेवल पे काफ़ी कम हो रहा है। एंड स्किल मैन पावर इन द गवर्नमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज नॉट अवेलेबल। जो आर्क जीआईएस में काम करने वाले जो इंजीनियर है, ऐसे इंजीनियर की संख्या भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ना के बराबर है। और देयरफॉर ए ह्यूज एडवांटेजेस सॉफ्टवेयर इज देयर। जीआईएस की कई सारी कैपेबिलिटीज़ है, लेकिन हम लोग उसको प्रॉपरली ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर ये सारे कंस्टेंट्स हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब ये सारे के ऊपर सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ द मैप डाटा इन ए सेंट्रलाइज फैसिलिटी। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी ये NSRA जो है, हमारा हैदराबाद में इसका स्टेशन है, जहाँ पे पूरे इंडिया का रिमोट सेंसिंग के डाटा जो है वो वहाँ पर सर्वर के अंदर सेव होता है। सो दिस टाइप ऑफ सेंट्रल फैसिलिटीज रिक्वायर। देन अवेयरनेस एंड इंक्रीजिंग द स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी इन द जीआईएस इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। ये जीआईएस के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले इंजीनियर्स को हमको ट्रेन करना पड़ेगा। सो दैट इज वन ऑफ द सोल्यूशन। देन इंक्रीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू कोप अप विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मुझे जीआईएस के लिए मुझे एक कंप्यूटर सर्वर जो मेरे सैटेलाइट से भी डाटा ले सके, या फिर जियो डाटाबेस के साथ में मैं नेटवर्क में बड़े स्टेशन से सर्वर से कनेक्टेड हो जाऊँ इंटरनेट के जरिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए, और फिर मैं वो डाटा को मेरे यहाँ से एज ए क्लाइंट को यूज़ करके मैं कुछ छोटे पैमाने पे मैं भी जीआईएस में काम कर सकता हूँ। इस प्रकार की कैपेबिलिटीज जो है वो हमको यहाँ पे खड़ी करनी पड़ेंगी। एंड सप्लीमेंटिंग द एनवायरमेंटल प्लानिंग डिवीजन विद द एडिक्वेट फंड्स। तो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये ऐसी जीआईएस के जैसी जो हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ है, जो आज कई सारे चीज़ों में हमको हेल्प कर रही है, उसके लिए हमको फंडिंग भी चाहिए, ताकि कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में हम लोग जीआईएस का काफ़ी स्मार्ट यूज जो है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस तीसरे लेक्चर में हमने जीआईएस की कई सारी कैपेबिलिटीज़ हमने यहाँ पे देखी, जियो डाटाबेस को हमने यहाँ पे समझा, स्पेशल डाटा और नॉन स्पेशल डाटा के हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने देखे, उसी हिसाब से हमने कुछ कंस्टेंट्स भी देखे जीआईएस के यूज़ के बारे में, और रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज, या रास्टर डाटा और वेक्टर डाटा, या रास्टर मॉडल और वेक्टर मॉडल, इसका क्या डिफरेंस है ये भी हमने यहाँ पर समझा। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे मिलेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला अगला लेक्चर, और वो है एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस। अभी तक का हमने जीआईएस का सारी टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, ये सारा हमने यहाँ पे समझा। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये हम लोग आने वाले लेक्चर में देखने वाले। सो आज का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।